classes and objects. In a way, we have been making classes, but we have not been making objects. So this is, this chapter, in this chapter, we are going to work with classes and also work with objects, and we are going to use them at our classes at a higher level. Just to give you a brief introduction to this, I'm clicking on the new class. I'm giving a name to this as extra1, extra. Double click on it. Control A to select the lines, existing lines, and delete them, delete key. You start your class with public class extra. Then within curly braces, you're going to write all the lines of your class, extra class. And then you write, we have been writing public static void main function with string arguments, and the lines within the main function ending with closing curly bracket, and then the closing curly bracket for the end of the class. तो ध्यान से सुनिए, इसके पहले हम इसके पहले जो क्लासेस बनाते थे उनमें सिर्फ एक ही फंक्शन होता था, मेन फंक्शन. वेल उसका नाम मेन ही होना जरूरी था, और आप इस फंक्शन को मतलब, और आज आप सीखोगे कि देयर कुड बी अदर फंक्शंस विद अदर नेम्स, बट मेन होना ही चाहिए, मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए. सो पहले हम हमारे क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाते थे, and all the lines that we wanted to do, we would put inside the main function. That means whatever my program is supposed to do, all the lines for that were written within the main function. This was the style of programming we were doing earlier. That means our class had only one function, that was a main function, and all the lines, whatever we wanted to do in the program, the lines for that were written inside the main function. But now, today, yesterday onwards, what we started doing was, inside a class, we defined some other functions also. We would define, we define them by writing the keywords public, void, and some name for that function. Say, for example, display1, or it could be any other name. I repeat, it could be any other name that you would like to give to that function. And how would we know that it is a function with these round brackets? Okay, when we give any name, and after that name, when we give round brackets, we understand that it is a function. After that, we would put a pair of curly braces, and whatever task that function is supposed to do, जो भी काम उस फंक्शन को करना है, उसके लिए जो लाइंस थी, हम उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे. इस तरह हम कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं हमारे क्लास के अंदर. बट चाहे एक बनाए, चाहे एडिशनल 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, कितने भी बनाए, तो ये बात याद रखिए कि आपके क्लास के अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है. So we could make a function display1, we could make another function display2. And if you're wondering why would we make them, when we could write all the lines inside main function and do our work, why do we make functions in like this? Let me tell you, this is called as, this is like modular programming, dividing your program into parts. That means you are not writing all the lines inside main function. You are writing some lines inside the function display1, some lines inside the function display2.
and within main, you're going to write lines to call the function display1 and display2. I repeat, you're going to call display1, you're going to, from main function, you're going to call display1 function. From main function, you're going to call display2 function. उसके लिए अब जहां तक जो लाइनें हैं अंदर जो लिखने वाले हैं वो हम हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे, that we are going to do today. I repeat, the main purpose of doing this is dividing your program into parts. That means समझो एक 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो पहले का जो स्टाइल हम यूज कर रहे थे उसमें सारी की सारी जो 100 लाइनें हैं वो मेन फंक्शन के अंदर होती और दूसरे कोई फंक्शंस नहीं होते क्लास के अंदर. पर अब ऐसा होगा कि कुछ लाइनें एक फंक्शन के अंदर होंगी, कुछ लाइनें दूसरे फंक्शन के अंदर होंगी, कोई लाइनें तीसरे फंक्शन के अंदर होंगी और कुछ लाइनें मेन फंक्शन के अंदर होगी. तो इस तरह हमारे प्रोग्राम को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. ये जिसे मैं पार्ट्स कह रहा हूं ये फंक्शन है. आई रिपीट, कुछ लाइनें एक फंक्शन में, कुछ दूसरे फंक्शन में, कुछ तीसरे फंक्शन में और कुछ लाइनें मेन फंक्शन में लिखेंगे. तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अभी के लिए मैं दिस इज आई कुड से दिस इज वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग. I'm closing this. This is just a a skeleton. It's just a template of my extra class. I have not actually written lines inside the functions or the main function. Now today, last session we did 2 programs which were given to you by your school. One program number 1, where we are making a class picnic. And the other one was program number 2, where we make the class employee. And we are proceeding today to the 3rd program. Now I will, keeping in mind that some of you, Mehak, you have not attended yesterday's lecture. Just tell me, Mehak, did you go through the YouTube videos which I sent the link of to? At night, I ensured that I put it on YouTube and share it with you. Were you able to do it? Yes, sir, I understood. Program 3. Take care of. I'll take care to see that you all. I explain the things thoroughly to you all, so that there are no limitations. Write a program. We are reading the question because in your paper you have the question and you have to write the solution. Write a program by using a class employee. You have to create a class employee with data members. Okay, data members. अभी के लिए समझिए, ये data members means variables बनाने हैं आपको क्लास में. कौन से वेरिएबल्स बनाने हैं? एम्प्लॉई आईडी के लिए एक वेरिएबल बनाना है. You have to make a variable, another variable for name, and a third one for department in which your employee is. क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स हमें बनाने हैं. इन्हें डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, इन्हें क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं. और ये जो वेरिएबल्स हमें बनाने हैं वो एम्प्लॉय आईडी और नेम. हमें इनका टाइप नहीं बताया गया है, तो हमें अपने कॉमन सेंस से इन्हें टाइप देना है. एम्प्लॉय आईडी को, नेम को, डिपार्टमेंट को. एंड वी हैव टू मेक अ मेथड. ओके, ये मेथड जो वर्ड लिखा हुआ है इसे फंक्शन भी कहते हैं, जिसे अभी मैं फंक्शन कह रहा था. टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2. तो फंक्शन बनाना है जिसका नाम डिस्प्ले होगा और हमें इस प्रोग्राम में 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने, स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2. We start with this program. Now I already have, last session
Yesterday I made a new project, chapter 2, because all these examples are from chapter 2. Concepts are in chapter 2. And we had created a class employee, and this class is also employee. But the one we created last session was different, and today what we are creating is different. One thing I can do is delete the earlier one. Okay, select it, right click and delete it, and make this new one employee. Or I can make a new one by a different name, So I click on, I'm not deleting it, I click on new class, and I'm calling it as EMPLOYE, single E at the end. Or I can call it as EMP, or I can call it as EMPLOY. This is the name of the class. The name is given by myself. In the question as such, they have given you the name. Please see. Write a program by using a class employee. So the name of the class is employee in the question. I've named it as EMPLOYE. Take care of that today. Okay. Double click on this class employee. Control A to select all the lines. Delete it. And you start defining the class, public class employee with single E. Curly bracket open. Now practically मैं आपको बता दूं, जब एक प्रोग्रामर, जावा प्रोग्रामर जब भी क्लास टाइप बनाना शुरू करता है प्रैक्टिकली, तो वो सबसे पहले क्लास के अंदर शुरुआत करता है बनाने की, टाइप करने की मेन फंक्शन को. This is the natural process. Open curly braces for main function. ओके, ये कर्ली ब्रेसेस सेम लाइन पे भी आ सकते हैं, मेन के आगे उसी लाइन में भी या नेक्स्ट लाइन पे भी आ सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. नोटिस कीजिए जब मैंने मेन फंक्शन के बाद एंटर किया तो प्लीज सी द कर्सर, द रेड मार्क व्हिच इज ब्लिंकिंग. इट इज 2 tabs inside. Okay, this is called indentation. This is optional, this is not compulsory, but it is for better presentation and on learning. It will help you to learn better and understand better. ये ब्लू जेक खुद ही दे रहा है, इंडेंटेशन वो खुद कर रहा है. Within the class, within this main function, I am writing employee and I am making an object staff1 equal to, then you write the new keyword and again you write the name of the class employee and then open bracket, close bracket. Now this process is called as creating object staff1 of class employee. ये जो स्टेप है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना क्लास में से. आई रिपीट, क्लास में से ऑब्जेक्ट बनाना. इसमें आपको क्लास का नाम लिखना है, आपने जो दिया है क्लास को नाम, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट को नाम देना है इक्वल टू सिंबल, देन द न्यू कीवर्ड. यस, ऑब्जेक्ट बना, क्लास में से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करना जरूरी है. And then again the class name with brackets after that. I repeat, this step is called as creating object from a class. The name of our object is staff1, class is employee. Now once again, ये जो class employee है, okay, उसे हम कुछ भी नाम दे सकते थे, कैसे भी लिख सकते थे, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अंडरस्कोर. इसके लिए जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो रूल्स को आइडेंटिफायर्स है. ऑब्जेक्ट staff1 जो मैंने नाम दिया है, इसके लिए भी जो रूल्स अप्लाई होंगे वो रूल्स को आइडेंटिफायर्स ही है. जी हाँ, क्लास को मैंने नाम दिया है वो आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट को नाम दिया है वो आइडेंटिफायर है,
वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो भी आइडेंटिफायर्स है। मैं आपको याद दिलाऊं, आइडेंटिफायर का डेफिनेशन जो हमने दिया था पहले आपको, अभी आप जाकर उसे रिवाइज करेंगे तो यू विल फाइंड द डेफिनेशन एज आइडेंटिफायर्स आर नेम्स, मैं लिख रहा हूं आज, गिवन बाय द प्रोग्रामर टू क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लास एम्प्लॉय को नाम दिया है वो आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट स्टाफ वन जो दिया है वो आइडेंटिफायर है, फंक्शंस। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो फंक्शंस हैं जो आज हम हमारे क्लास में डालेंगे, इन्हें मेथड्स भी कहते हैं। मेथड्स, क्वेश्चन में आप देखेंगे इनको मेथड कहा गया है, और सिंपल शब्दों में हम सिंपल नेम दे तो फंक्शन कहेंगे इसे। तो फंक्शन को नाम हम देंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे उन्हें भी नाम देंगे। I repeat, identifiers are names given by the programmer to classes, objects, functions, variables, etc. और अभी इस एग्जाम्पल में, इस प्रोग्राम में हमने क्लास बनाया है, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, फंक्शंस भी बनाने वाले, वेरिएबल्स भी बनाने वाले। इस प्रोग्राम में हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाने को कहा गया है, तो उसे हम नाम देते हैं स्टाफ 2। नाउ इफ यू वंडरिंग हम दो ऑब्जेक्ट्स क्यों बना रहे हैं, हमें इस प्रोग्राम में दो एम्प्लॉइज के डेटा को के साथ काम करना है, दो एम्प्लॉइज के साथ काम करना है। अगर इस तरह से अगर हमें 10 एम्प्लॉइज होते ऑर्गेनाइजेशन में और उन 10 एम्प्लॉइज का डेटा हमें स्टोर करना हो या उनके साथ काम करना हो, तो हम इस तरह से 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जी हाँ, वन आफ्टर द अदर, इस तरह से हम 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अच्छा, अब ये हमने ऑब्जेक्ट को नाम दिया स्टाफ 1। हम I could have given the name as E1, employee 1, E2, employee 2. That was absolutely okay. बट अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में कहा गया है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ऑब्जेक्ट्स जो बनाने हैं उनका नाम स्टाफ 1 और स्टाफ 2 ही होना चाहिए। नहीं दिया होता तो हम अपनी मर्जी से कुछ और नाम दे देते। प्लीज सी द सॉल्यूशन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने जो मैंने पहले टाइप करना शुरू किया, एम्प्लॉय स्टाफ 1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टाफ 2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, अब आगे, अब जो क्वेश्चन में कहा गया हमें क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स बनाने हैं, दैट मींस वेरिएबल्स बनाने हैं। तो देखो उन्हें हम कहाँ बना रहे हैं, मेन फंक्शन के पहले क्लास के अंदर। एक्चुअली मैं कहूंगा क्लास के अंदर सबसे पहले हमें डेटा मेंबर्स बनाने चाहिए। ओके, यस, मेन फंक्शन बना लिया, अभी हम डेटा मेंबर्स बना रहे हैं हमारे क्लास में। आई नो व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द पेपर आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही चलना है। यस, जब आप पेपर में ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो यू हैव टू गो इन द सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओनली। INT एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, और स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, नेम एंड डिपार्टमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉय आईडी को हमने इंटीजर बनाया। Often employee ID is like employee numbers. Okay, these don't have any decimal point in them. Employee numbers.
roll numbers of students, employee numbers, product numbers. These numbers do not have a decimal point. They are integer values. Often, always rather. Name will have characters. Department name will also have characters. So they have defined a string type. We have defined them as string type. Please see your school solution. String name, comma, department, integer employee ID. मैंने पहले इंटीजर एम्प्लॉय आईडी लिखा है, फिर स्ट्रिंग लिखा है. क्या वो गलत है या ठीक है, चलेगा? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? थोड़ा थोड़ा मैं अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा. तो इज दिस करेक्ट? टेल मी इन योर चैट बॉक्स. line the lines I have written integer first and then string name and department. No reply, please. Please be quick. Yes, it is correct. It is okay. Absolutely okay. No problem about that. Okay, let that change be there. You know, some small changes like these are my message to you that this is valid. This is not wrong. Okay. Let that message go to you that this is okay. Yeah, I did not change the name of staff 1 and staff 2. I did suggest E1 and E2, but in the question it is given that you have to make objects by the name staff 1 and staff 2, so that's why they remain the same. Now continuing back to, अब हम मेन फंक्शन में लौट रहे, और मेन फंक्शन में मैं लिख रहा हूं staff 1 ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101. दैट मीन्स स्टाफ 1 जो है ऑब्जेक्ट, उसका जो वेरिएबल है एम्प्लॉय आईडी, यू हैव टू सेपरेट दिस बाय डॉट. मीन्स आप बता रहे कंप्यूटर को कि मैं दो स्टाफ के साथ काम करना चाहता हूं, तो पहले स्टाफ मेंबर का जो एम्प्लॉय आईडी है, उसका जो नंबर है वो है 101. उसका नाम है आमिर, और स्टाफ 1 का डिपार्टमेंट है फाइनेंस. सेमीकोलन at the end of the statement. तो नोटिस कीजिए मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन में हमने लाइंस लिखी है, और इस लाइंस के द्वारा हम बता रहे हैं डेटा, स्टाफ 1 का डेटा क्या है और स्टाफ 2 का डेटा क्या है. नोटिस कीजिए मैं जानबूझ के स्टाफ 1 आगे से निकाल रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101. ओके, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101. पर अभी ये, वैसे मैं चाहता था कि वो एरर पॉइंट आउट करे, वो नहीं पॉइंट आउट कर रहा है एरर. हाँ, ऊपर देखिए, ऊपर जो अंडरलाइन है वो किसी और कारण है. आई टेल यू व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. वो है क्योंकि क्लास के कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, तो वो दे देता हूं. मेन फंक्शन के दिए हमने कर्ली ब्रेसेस, क्लास के नहीं दिए, उसकी वजह से ऊपर अंडरलाइन आ रहा है, रेड अंडरलाइन. वेल, अभी भी आ रहा है, गुरु आ रहा है, और मैं कहूंगा उसका जवाब ये है कि हमने फाइनेंस के बाद सेमीकोलन नहीं दिया है. चलो वो करेक्ट कर लिया. अच्छा, अब आ रहा है, देखो नोटिस कीजिए, अब अंडरलाइन आ रहा है. ईएमपी आईडी इक्वल टू 101 पे अंडरलाइन आ रहा है, रेड अंडरलाइन. यस, दिस प्रूव्स दिस, ये एक मैसेज है एक तरह से आपके लिए कि आपने जो लिखा है वो गलत है. उसे समझ में नहीं आ रहा है एम्प्लॉय आईडी किसका, स्टाफ नंबर 1 का या स्टाफ नंबर 2 का, किसका, वो कंफ्यूज हो रहा है मुझे. तो आपको बताना है कि स्टाफ नंबर 1 का एम्प्लॉय आईडी है 101. इज इट क्लियर? मैं यहां बाजू में लिखता हूं ट्राई एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101 सेमीकोलन, और बाजू में मैं लिख रहा हूं एरर, मींस ये एरर देगा. ओके,
दिस इज टू टेल यू दैट आपको वैसे नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम लिखना है। अच्छा, मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी के आगे एक कमेंट लिख रहा हूं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें डेटा मेंबर्स कहते हैं। इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। या शॉर्ट में कहिए वेरिएबल्स। आई रिपीट, शॉर्ट में आप इन्हें वेरिएबल्स कहिए या डेटा मेंबर्स कहिए। नेक्स्ट, हमने ये डेटा स्टाफ 1 को दिया। नाउ लेट मी टेल यू, हम अब चाहें तो इसका डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। आई रिपीट, हम स्टाफ 1 का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टाफ 1 डॉट एंड वी राइट अ फंक्शन डिस्प्ले। इस तरह से कॉल करेंगे फंक्शन। ये एक फंक्शन होगा जो हम बनाएंगे मेन के ऊपर, जिसमें लाइनें होंगी जो एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करेगी। हम लिखेंगे, हम बनाएंगे वो फंक्शन। मैं खाली बात कर रहा हूं कि अब चाहे तो हम डिस्प्ले फंक्शन को स्टाफ 1 के लिए कॉल कर सकते हैं टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ स्टाफ 1 एंड देन वी गो टू स्टाफ 2 सिमिलरली। अभी अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया नहीं है, तो एक्सेप्ट दैट एज ऑफ नाउ। आई रिपीट, इसके बाद आई कैन डील विद स्टाफ 2, उसके वेरिएबल्स को वैल्यूज देना और डिस्प्ले करना। और इफ यू वांट, इफ यू सी द पैटर्न इन योर सॉल्यूशन, क्या किया गया है? स्टाफ 1 के वेरिएबल्स के बाद स्टाफ 2 के वेरिएबल्स को वैल्यूज दी गई है और फिर डिस्प्ले स्टाफ 1 के लिए कॉल किया और फिर डिस्प्ले स्टाफ 2 के लिए कॉल किया। मैं खाली थोड़ी चेंज की बात कर रहा हूं कि हम स्टाफ 1 के वेरिएबल्स को वैल्यूज देकर डिस्प्ले कॉल कर सकते हैं स्टाफ 1 के लिए। मैं लेट इट बी लाइक दिस। आई होप यू डोंट गेटिंग कंफ्यूज विद दिस। लीजिए, अब मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाता हूं। आपके क्लास में सॉल्यूशन में डी डिस्प्ले फंक्शन का डी स्मॉल में लिखा है और उसे डिस्प्ले 1 नाम दिया है। ये नाम फंक्शन का हमारे ऊपर है, आइडेंटिफायर है, प्रोग्रामर के ऊपर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन में ऐसे कोई बात कही गई है क्या? पढ़ते हैं क्वेश्चन। उन्होंने कहा डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। उन्होंने आपको फंक्शन का नाम नहीं बताया, तो आप अपनी मर्जी से उस फंक्शन को नाम डिस्प्ले दो या डिस्प्ले 1 दो या डिस्प्ले 10 दो, आपकी मर्जी पे है वो। अलाउ मी, मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूं डिस्प्ले। आई रिपीट, मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूं डिस्प्ले। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। एंड ये जो स्टेप आप देख रहे हैं स्टाफ 1 डॉट डिस्प्ले, ये स्टेप को कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन। हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मेन से। दैट मीन्स यहां पर अभी ब्लू जे यहां ये लाइन पढ़ने के बाद वो ऊपर उस क्लास में ढूंढने को जाएगा डिस्प्ले फंक्शन। ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर कहीं पर लिखा होना चाहिए पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट्स। इस स्टेप को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं फंक्शन हेडर। ये आपके फंक्शन की हेडिंग है।
I repeat, it's called as function header. I'm repeating, staff1.display is a call we are making to the display function. At this point of time, BlueJ will move up, search in the class a name by the name function name by the name display, and go inside it and execute the lines within it. अंदर जो लाइन्स है वो चलाई जाएगी, उस फंक्शन के अंदर की लाइन्स को चलाया जाएगा. system.out.println हम लिख रहे हैं उस फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय आईडी कोलन सिंबल, ये डेकोरेशन के लिए है, डबल कोट्स में जो भी हमने लिखा है, द डॉट that we are writing short form for ID, identification का short form इस word का, colon is for decoration, और आप प्लस साइन लिखें after the quotes, as you know we do that usually, और आप यहाँ पर जो लिखेंगे वो सिर्फ लिखेंगे EMP ID, not staff1.EMP ID. जी हाँ, यहाँ पर आप staff1.EMP ID नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ EMP ID लिखेंगे. system.out.println employee name colon in double quotes, all this for decoration purpose, plus name, not staff1.name. System.out.println department plus DEPT. ये हमने डिस्प्ले फंक्शन हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करेगा, ये 3 लाइनें, और इन 3 लाइनों को प्रिंट करके डिस्प्ले फंक्शन खत्म होगा, और डिस्प्ले फंक्शन खत्म होने पर हम मेन फंक्शन में लौटेंगे एंड अगली नेक्स्ट लाइन को चलाएंगे. नेक्स्ट लाइन मींस यहां पर पहुंचेंगे, द लाइन आफ्टर staff1.display, दैट मींस डिस्प्ले फंक्शन को पूरा चला लेने के बाद हम अगली लाइन पे पहुंचेंगे. प्रोग्राम यहां चलाकर देख सकते हैं. ओके, staff1 ऑब्जेक्ट के साथ हमने काम किया पूरा, हमने staff2 बनाया पर उस पर काम नहीं किया है, we'll do that, but as I said हम यहाँ प्रोग्राम हमारा चलाकर देख सकते हैं. प्लीज कंपाइल करके प्रोग्राम को क्लोज एंड इसे राइट क्लिक करके एम्प्लॉय विद सिंगल ई एट द एंड, एग्जीक्यूट द फंक्शन मेन, एम्प्लॉय आईडी 101, नेम आमिर, डिपार्टमेंट फाइनेंस दिख रहा है हमें staff1 ऑब्जेक्ट के लिए. कोई डाउट है आपको? Do you have any doubts up till here, please? Now I can continue with my program with lines for staff2. Okay, just before that, मैं कह रहा था डिस्प्ले फंक्शन के अंदर you are not supposed to write staff1.EMP ID. Please see, if I write that, I get an error over there. Now we continue with staff2. So in my program, now friends, program के अंदर जो blank line है मैंने छोड़ी हुई है वो यूं ही, okay, it is not, they are not compulsory, आपको नहीं छोड़नी है, आप नहीं छोड़िए. You know, as teachers हम ये इसीलिए छोड़ते हैं ताकि you know student can
identify portions of the program. You know, the student can visually identify portions of the program and not get mixed up with all the lines. So I'm leaving a blank line. I'm now writing staff 2 dot staff 2 का employee ID 102 या आप 1002 दे दीजिए. ये लो, मैं जानबूझ के चलो अभी 1002 दे देता हूँ. तो ये आपकी मर्जी पे, क्वेश्चन में उन्होंने कहा नहीं है. स्टाफ 2 डॉट नेम इक्वल टू शाहिद. स्टाफ 2 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट्स. और फिर ये डिटेल्स स्टाफ 2 के को देने के बाद हमें उन्हें डिटेल्स को प्रिंट करना है. तो स्टाफ 2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसका काम है हमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करना, दिखाना स्टाफ 2 का. कंपाइल करते हैं ना फ्रेंड्स. अभी क्या मुझे डिस्प्ले फंक्शन स्टाफ 2 के लिए अलग से लिखना है क्या? प्लीज गिव रिप्लाई, yes or no. Have I to write display function, one more display function for staff 2 now? Friends, yesterday हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया जिसमें हमने दो बनाए थे फंक्शन, डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2. एक स्टाफ 1 के लिए, एक स्टाफ 2 के लिए. कल हमने बनाया था, पर वो प्रोग्राम और ये प्रोग्राम अलग अलग है. जी हाँ, मेरा ये सवाल हो सकता है आपको कंफ्यूज करे. कल हमने, ये देखिए, कल जो एम्प्लॉय प्रोग्राम हमने बनाया था, प्रोग्राम नंबर 2. फ्रेंड्स, प्रोग्राम नंबर 2 जो एम्प्लॉय क्लास बनाया था, उस पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया था हमने, जो एम्प्लॉय 1 के डिटेल्स प्रिंट कर रहा है, और डिस्प्ले 2 जो एम्प्लॉय 2 के डिटेल्स प्रिंट कर रहा है. हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, स्टाफ 1, स्टाफ 2. स्टाफ 1 डॉट डिस्प्ले 1 कॉल किया क्योंकि वो स्टाफ 1 के डिटेल 100, एम्प्लॉय नंबर 101 के डिस्प्ले करेगा. और स्टाफ 2 डॉट डिस्प्ले 2 किया, दैट विल डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय नंबर 102. वो प्रोग्राम जो हमने कल किया है वो अलग स्टाइल में लिखा गया है, और आज जो हम कर रहे हैं वो अलग स्टाइल में है. फ्रेंड्स, लास्ट सेशन कल जो हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, प्लीज देखिए डिस्प्ले फंक्शन के उस कल के क्लास के अंदर पहले तो नोटिस कीजिए कोई भी वेरिएबल्स नहीं है. रिपीट कर रहा हूं, कल के क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर्स नहीं है. दूसरी बात, अच्छा, आज के प्रोग्राम क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स है, वेरिएबल्स है डेटा रखने के लिए, कल वाले में नहीं था. दूसरी बात, कल वाले में डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले 2 अलग इसलिए क्योंकि डिस्प्ले 1 के अंदर जो आप देखें तो एम्प्लॉय आईडी 101 उसके डबल कोट्स के अंदर ही लिखा हुआ है, नेम भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है. और डिस्प्ले 2 फंक्शन में एम्प्लॉय नंबर 2 के डिटेल्स है 102 XYZ अकाउंट. मतलब अभी सोचिए, अगर अब कमिंग टू मेन फंक्शन, हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2. हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टाफ 1 एंड स्टाफ 2. नाउ स्टाफ 1 डॉट डिस्प्ले 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि डिस्प्ले डिस्प्ले 1 फंक्शन
पहले वाले एम्प्लॉय के डिटेल्स प्रिंट करे, जो लाइनें उसमें लिखी हुई है, एम्प्लॉय नंबर 101 ABC फाइनेंस एंड स्टाफ टू डॉट डिस्प्ले टू, इसलिए ताकि डिस्प्ले स्टाफ टू जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्प्ले टू फंक्शन चलाए, जो डिस्प्ले करे एम्प्लॉय नंबर 102 XYZ अकाउंट. आई एम गोइंग टू ब्लू जे एंड मैं कल वाला प्रोग्राम एम्प्लॉय वाला ओपन कर रहा हूं. अब नोटिस कीजिए, अगर मैं उसमें चेंज करूं कल वाला, इधर खाली छोटी सी बात है, फंक्शन के नाम मैंने बदली किए शो वन शो टू, जस्ट टू कन्वे द मैसेज टू यू कि दीज आर आल्सो वैलिड नेम्स. यू कैन चेंज द नेम्स. तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3 नहीं लिखकर एक ही में काम किया है, जस्ट टू सेव टाइम. अब जरा गौर कीजिएगा, स्टाफ वन डॉट शो वन एंड स्टाफ टू डॉट शो टू कॉल किया है. स्टाफ वन शो वन फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उसके डिटेल्स प्रिंट होंगे स्टाफ वन के. स्टाफ टू शो टू के फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो शो टू के डिटेल्स प्रिंट हो, स्टाफ नंबर 2 के डिटेल्स प्रिंट होंगे. रन कर रहा हूं उस प्रोग्राम को. ओके, एम्प्लॉय नंबर 1 और एम्प्लॉय नंबर 101 और 102 के डिटेल्स प्रिंट हो रहे हैं. तो बात को समझिए, एक दो फंक्शन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एक फंक्शन के अंदर कोडिंग लिखी गई है, उसी के अंदर फंक्शन के अंदर ही एम्प्लॉय नंबर 1 का डेटा प्रिंट करने की डिटेल्स है, और दूसरा फंक्शन उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर 2 के डिटेल्स प्रिंट करने की डिटेल्स है. नाउ हियर, इसीलिए दो अलग अलग फंक्शन बनाए गए थे. एंड नाउ वी कम टू द प्रोग्राम वी आर डूइंग टुडे. पहली बात अलग यहां पर यह है कि हमने यहां पर इस प्रोग्राम में आज वेरिएबल्स बनाए हैं, डेटा मेंबर्स बनाए हैं. ये इसलिए ताकि ये डेटा मेंबर्स हमारा डेटा रखे, ये वेरिएबल्स हमारा डेटा स्टोर करे. एंड एक और बात सुनिए, ये जो वेरिएबल्स है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ये स्टाफ 1 के लिए अलग बनेंगे मेमोरी में, स्टाफ 2 के लिए अलग बनेंगे मेमोरी में. अगर आप 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए, 10 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो 10 के 10 एम्प्लॉइज के लिए ये वेरिएबल्स मेमोरी में अलग अलग बनेंगे. नाउ मेन फंक्शन में यू मेक 2 ऑब्जेक्ट्स. तो मैंने कहा स्टाफ 1 का एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, स्टाफ 1 का नेम बनेगा, स्टाफ 1 का डिपार्टमेंट बनेगा. उसी तरह स्टाफ 2 का एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ 2 का नेम, स्टाफ 2 का डिपार्टमेंट, ये 6 वेरिएबल्स बनेंगे मेमोरी में. 3 स्टाफ 1 के और 3 स्टाफ 2 के. फिर हमने वैल्यूज दी मेन में, वो वेरिएबल्स जो स्टाफ 1 के हैं उनको वैल्यूज दी, और फिर हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं. ना अभी बात कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन एक क्यों. नोटिस कीजिए डिस्प्ले फंक्शन एक ही क्यों बनाया, दो क्यों नहीं बनाया, डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले 2. नोटिस कीजिए इसका जवाब है आपके ऑब्जेक्ट में. ये देखियो, स्टाफ 1 डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है. जब ऑब्जेक्ट स्टाफ 1 डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉमन सेंस है कि उसे एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट वेरिएबल्स प्रिंट करने, किसके, स्टाफ 1 ऑब्जेक्ट के. आई रिपीट, वाई डिस्प्ले फंक्शन एक ही,
बिकॉज ये एक अलग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये अलग क्लास बनाया गया अलग स्टाइल से। ये स्टाइल जो अभी हम कर रहे हैं इज द कॉमनली यूज्ड स्टाइल। कल का एम्प्लॉई इज नॉट द कॉमनली डन स्टाइल, दिस इज द कॉमनली डन स्टाइल, द स्टाइल कॉमनली फॉलोड। डिस्प्ले फंक्शन स्टाफ 1 के लिए चलेगा तो मानो जैसे डिस्प्ले फंक्शन को कॉमन सेंस है कि उसे एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करना है स्टाफ 1 का, और बाद में जब आप स्टाफ 2 की मदद से स्टाफ 2 डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा तो डिस्प्ले फंक्शन को तब कॉमन सेंस होगा कि किसका एम्प्लॉय आईडी नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करना है, स्टाफ 2 का प्रिंट करना है। पर ये तब जब आपके स्टाफ 2 के एम्प्लॉय आईडी को, नेम को और डिपार्टमेंट को वैल्यूज दी हो। हाँ, इज दिस क्लियर? एक और छोटी सी बात बता दूं, ये मैंने नीचे जब स्टाफ 1 डॉट डिस्प्ले किया, कहा कॉल किया, तो देखो बाजू में मैंने कमेंट लिखा है, स्टेप को कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन को कॉल करना, ओके, फंक्शन को कॉल करना का मतलब वापस से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, यहां से मेन फंक्शन से जब आप फंक्शन स्टाफ 1 डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो यहां से वो निकलेगा ब्लू जे, ऊपर ढूंढेगा डिस्प्ले फंक्शन। इस स्टेटमेंट को फंक्शन हेडर कहते हैं। एंड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जाके जो लाइनें लिखी हुई है उन्हें करेगा, और क्लोज कर्ली ब्रैकेट पर वो फंक्शन खत्म होगा, और यहां से ब्लू जे रिटर्न करेगा और नेक्स्ट लाइन पे आएगा। कौन किसकी नेक्स्ट लाइन पे? मेन फंक्शन की। जो जिस लाइन में आपने कॉल किया, कॉल हो गया, फंक्शन चलाकर हो गया, तो अब ब्लू जे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ब्लैंक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, फिर ये काम करेगा, अब ये काम करेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्टाफ 2 के एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू देगा, स्टाफ 2 के नेम को वैल्यू देगा, स्टाफ 2 के डिपार्टमेंट को वैल्यू देगा, और अब मेन फंक्शन बोल रहा है कि जाओ डिस्प्ले फंक्शन कॉल करो, पर अभी स्टाफ 2 के लिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल करो, मतलब उसका डेटा प्रिंट करना। अगेन मेन ब्लू जो यहां से निकलेगा, डिस्प्ले फंक्शन के पास जाएगा, उसके अंदर लिखी हुई लाइनें प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, और अब फंक्शन खत्म हुआ और मेन फंक्शन में लौटेगा। मेन फंक्शन में लौटेगा, आगे और कुछ लाइनें नहीं है मेन फंक्शन में, आगे और कुछ लाइनें नहीं है, मेन फंक्शन खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ। Is this understood by you? अब फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, प्लीज सी, मैंने एक और छोटा सा चेंज कर रहा हूं। ये एम्प्लॉय स्टाफ 2 ये लाइन ये नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। चलो अब की बार ब्लैंक लाइनें नहीं देता हूं बीच में, ओके? क्या क्या थोड़ा जो लाइंस का सीक्वेंस, इस तरह से स्टाफ 1 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट को वैल्यूज दी और फिर डिस्प्ले किया, और फिर यही काम स्टाफ 2 के लिए किया। ओके, ये देख लीजिए सीक्वेंस मेरे स्टेप्स का। मतलब पहले मैंने स्टाफ 1 ऑब्जेक्ट के साथ पूरा काम कर लिया और फिर स्टाफ 2 ऑब्जेक्ट के साथ काम किया। दैट मींस स्टाफ 2 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके वेरिएबल्स को वैल्यूज दी और डिस्प्ले किया। ना मैंने इस तरह से किया, और आपके कॉलेज स्कूल में इस तरह से किया हुआ है। सॉरी, ये सेकंड वाला प्रोग्राम है, कल वाला, आज वाला है। अब मेन फंक्शन में स्टाफ 1 ऑब्जेक्ट बनाया, फिर स्टाफ 2 बनाया, फिर स्टाफ 1 के वेरिएबल्स को वैल्यू दिया, फिर स्टाफ 2 के वेरिएबल्स को वैल्यू दिया,
और फिर स्टाफ 1 डिस्प्ले स्टाफ 2 डिस्प्ले किया। स्टाफ 1 एंड फंक्शन का नाम डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 अभी इधर अलग अलग नहीं है, और स्टाफ 2 ऑब्जेक्ट के लिए भी डिस्प्ले फंक्शन चला है जिसका काम है डिस्प्ले करना। ना क्या ये स्टाइल ओके ये इस तरह से करना, ऑब्जेक्ट बनाना, फिर वैल्यूज देना, फिर प्रिंट करना, ओके और मेरा इस तरह से करना, क्या वो अलग अलग है? क्या वो बड़ा फर्क है? क्या इज देयर अ बिग डिफरेंस इन दिस? Yes or no? There is no difference, let me tell you. आप प्रोग्राम चलाएंगे आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, बट हाँ यस लेट मी ऐड फ्रॉम माय साइड। यस जिस तरह से स्कूल में किया गया है ये इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट एक के बाद एक बनाना, फिर स्टाफ 1 को डेटा दे देना, स्टाफ 2 को डेटा देना और लास्ट में प्रिंट करना स्टाफ 1 का डेटा और स्टाफ 2 का, ये बेहतर स्टाइल है। यस आई कंफर्म दैट। यस आई कंफर्म ये बेहतर स्टाइल है। मैंने बोला मैंने जैसे किया वो बेहतर है। हाँ मैंने सिर्फ इसलिए इस तरह से लिखा है कि ये भी करेक्ट है, आप अटके नहीं रहे कि इसी ऑर्डर में लाइंस को लिखना है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इस बार मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने जैसे लिखा है वो बेहतर स्टाइल है, नहीं, मैंने खाली आपको एक अलग स्टाइल स्टेप्स मेन फंक्शन के स्टेप्स को लिखने का सीक्वेंस अलग दिया है। You should have I want you to develop the logic that this also is a correct way of doing it. Okay, आप हमें करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हमें वेरिएबल्स को वैल्यूज देने और फिर प्रिंट करना है, ये काम हमें करने। Any doubts before I move on to the next program now? I'll be sharing my solution with you. ओके एक्सेप्ट एक जगह मैंने यहां पर सिर्फ एरर लिखा है। ओके नोटिस कर लो कहां एरर लिखा है कि उस जगह उस लाइन पे अगर आप लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101 बिफोर विदाउट राइटिंग स्टाफ 1 डॉट, तो वो एरर। बाकी के जो भी चेंजेस किए हैं मैंने वो वैलिड है। क्लोज करता हूं इसे मैं एंड वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। Okay, we'll just take a break for 2-3 minutes and then we continue with this next program. If you have any queries, be ready with your queries. Okay, exact 12:30. My computer shows me 12:27 now. Okay, this program, product class that we are going to make, I repeat, it will have two data members, variables, product ID and name. We are supposed to in main function make two objects, TV set and cooler of this class product, and function एक ही बनाना है display, इन्हें प्रिंट करने के लिए, डिटेल्स उसके प्रोडक्ट में प्रिंट करने के लिए। ना मैं अभी ये सोल्यूशन, so I'm making the class product. Just a moment, I'll just delete it and make it again. New class, give the name to the class product, double click on it, press Ctrl A to select all the lines and delete them. Start defining the class, public class product, open curly braces. In this class, we have to define two data members. One data member int, product ID, and string. Just checking up the question, product ID and name. So I made product ID as integer type and product name as string type. These are the two variables we have defined, data members we have defined.
Tell me, do you have any doubts with them, with the definition of these two data members? Now I'm going to type the program right from top to bottom, not up and down and up and down, in a flow that you, in the manner you're going to write. Next, अब हमें इस प्रोग्राम में फंक्शन बनाना है, public void and the function name display. अब मैं डिस्प्ले डी कैपिटल में लिखूं या मैं उसे नाम डिस्प्ले दूं या डिस्प्ले वन दूं. अब भला डिस्प्ले वन क्यों नाम दूं जब ये एक ही बना रहे हैं हम. डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू दो तो नहीं बना रहे. यकीनन आप स्टूडेंट सोचेंगे क्यों डिस्प्ले वन नाम दिया है, तो एक ही. चलिए, फॉर अ चेंज मैंने डी कैपिटल में नहीं लिखे, स्मॉल में लिखा है. ये सब आपकी मर्जी पे. मैं बता दूं, कर्ली ब्रेसेस, इतना कहूंगा कि फंक्शन का नाम डिस्प्ले है. ओके, फंक्शन है इसीलिए कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स है, सॉरी, फंक्शन के नाम के बाद. और ये पब्लिक और वॉइड कीवर्ड्स, दीज आर वी नीड टू ऐड देम. ओके, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात कर रहे कि पब्लिक क्यों लिखा है, वॉइड क्यों लिखा है, तो वो मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ डिस्कशन, क्योंकि वो डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत डिस्कशन दूर चला जाएगा. फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, बस अपने एज इट इज पब्लिक और वॉइड लिखा है. आगे system.out.println, इसका काम है प्रिंट करना. प्रोडक्ट आईडी डबल कोट्स में टेक्स्ट और प्लस प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल सेमीकोलन. system.out.println प्रोडक्ट नेम कोलन प्लस नेम, वेरिएबल का नाम नेम है. मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो दिखाया मैंने आउटपुट में, प्रोडक्ट नेम. ओके, और वेरिएबल का नाम है नेम. बस ये दो डिटेल्स प्रिंट करने हैं डिस्प्ले फंक्शन को हमारे. क्लोज कर्ली ब्रेसेस. यहाँ डिस्प्ले फंक्शन खत्म हुआ. इसे प्रोडक्ट आईडी और नेम डिस्प्ले करना है. यहां पर आपको प्रोडक्ट आईडी का नाम, वेरिएबल का नाम और नेम का नाम लिखना है. आगे कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं डालना है, डॉट नहीं डालना है आगे. यस, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. यहां आपको ऑब्जेक्ट का नाम नहीं डालना है. अब आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, जो हर जावा प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है. ओपन कर्ली ब्रेसेस. आप ये ओपन कर्ली ब्रेसेस मेन फंक्शन के नेक्स्ट लाइन पे भी दे सकते हैं, और चाहे तो मेन फंक्शन के आगे उसी लाइन पे भी दे सकते हैं. मेन फंक्शन के अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाने को कहा गया है इस प्रोडक्ट क्लास के. अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. प्रोडक्ट क्लास का नाम ऑब्जेक्ट टीवी सेट इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट का नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, न्यू, और प्रोडक्ट क्लास का नाम फिर से. दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट कूलर इक्वल टू न्यू एंड क्लास का नाम प्रोडक्ट अगेन. ये ब्लैंक लाइन छोड़ू या नहीं छोड़ू हमारी मर्जी पे. अब हमें टीवी सेट जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट आईडी और नेम देना है. मेन में आप देखो कैसे लिखेंगे. नोटिस कीजिए, मेन के अंदर आपने इनसाइड मेन आपने ऑब्जेक्ट्स बनाया ना, तो अभी आपको ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट आईडी इस तरह से लिखना है. प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1001 टीवी सेट डॉट नेम इक्वल टू सोनी.
प्रोडक्ट आईडी दिया मैंने 1001 इंटीजर विदाउट कोट्स, नेम दिया सोनी विद कोट्स बिकॉज इट इज स्ट्रिंग। आई रिपीट, आप ये मेन फंक्शन में आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए टीवी सेट और कूलर, इसीलिए टीवी सेट डॉट प्रोडक्ट आईडी टीवी सेट डॉट नेम। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कूलर डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1002 कूलर डॉट नेम, कौन सी कंपनी का है कूलर, सिम्फनी। तो हमने टीवी सेट को डेटा दे दिया, कूलर को डेटा दे दिया, दैट इज प्रोडक्ट आईडी और नेम। और अब हम टीवी सेट डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन जो प्रोडक्ट आईडी और नेम प्रिंट करेगा ऊपर जाकर, और कूलर डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कूलर के डिटेल प्रोडक्ट आईडी और नेम प्रिंट करेगा। यहां पर हमारा मेन फंक्शन खत्म हुआ और क्लास खत्म हुआ और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कंपाइल करता हूं मैं इसे, नो एरर्स। क्लोज करते हैं और हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देयर यू आर, प्रोडक्ट टीवी सेट के डिटेल्स और फिर कूलर के डिटेल्स। Double click on this. Vibha is asking me a question which I am sharing with you. Have a look. Good question, and that's why I'm sharing. कि ये display function, इसे अगर हम कट करें और मेन फंक्शन के नीचे डाल दें तो क्या वो चलेगा क्या क्लास के अंदर, बट आफ्टर मेन फंक्शन, मींस मेन फंक्शन पहले और फिर डिस्प्ले फंक्शन। ये ब्लैंक लाइन आप नहीं भी देंगे चलेगा, निकाल रहा हूं मैं ब्लैंक लाइंस। इस सोल्यूशन में मैं कोई ब्लैंक लाइंस नहीं रख रहा हूं। इफ दैट इफ यू आर वंडरिंग इन दैट रिगार्ड कि वो चाहिए कि नहीं, तो मैंने कोई भी अनवांटेड ब्लैंक लाइंस नहीं रखी है, पर डिस्प्ले फंक्शन को मैंने नीचे शिफ्ट किया है, मेन फंक्शन के नीचे। कंपाइल कर रहे, नो एरर्स, दैट इज वैलिड। बट एज फार एज योर स्कूल इज कंसर्न, इफ यू फॉलो दैट पैटर्न, then in that regard I would recommend कि आप डिस्प्ले मेन फंक्शन को लास्ट रखें। तो कोई भी फंक्शंस आप बनाएं, एक दो, वो मेन फंक्शन के ऊपर होने चाहिए। और फिर से याद दिला रहा हूं, ये डिस्प्ले फंक्शन ये यूजर का बनाया हुआ फंक्शन है। तो नोटिस कीजिए, ये डिस्प्ले फंक्शन जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में डी कैपिटल लिखा था, वहां इधर डिस्प्ले का डी स्मॉल में लिखा है। आपके स्कूल के सोल्यूशन में डिस्प्ले 1 नाम दिया गया था। तो ये हमारे ऊपर है, ये जावा, ऐसा नहीं कि जावा फोर्स कर रहा है हमें ये नाम देना, नहीं। हाँ, इतना बता दें, जावा की तरफ से अगर कोई रूल है तो वो मेन फंक्शन के बारे में है, उसका नाम मेन MAIN और स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए। ये रूल जावा का है अपना, जो आपको फॉलो करना है। क्लोज करता हूं, रन करके देखते हैं। ये डिस्प्ले फंक्शन जो आपने नीचे शिफ्ट किया, आउटपुट अभी भी वही है बरोबर से, कोई चेंज नहीं है आउटपुट में हमारे। आउटपुट में नोटिस कीजिए, ये टीवी सेट डॉट डिस्प्ले और बाद में लिखता हूँ, पहले कूलर डॉट डिस्प्ले लिखते हैं। तो पहले ये ऐसा होगा कि कूलर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले फंक्शन चलेगा जो कूलर ऑब्जेक्ट के डेटा डिस्प्ले करेगा,
दैट इज 1002 सिम्फनी। और फिर टीवी सेट के लिए डिस्प्ले फंक्शन चलेगा जो प्रिंट करेगा 1001 सोनी। तो अभी आउटपुट में पहले कूलर के डिटेल्स आएंगे और फिर नीचे उसके टीवी के डिटेल्स आएंगे। आई होप ये समझ में आ गई बात आपको, छोटी सी बात। Just because you have called the cooler object first and then the TV set object. You have called the display function for cooler object first and then the display function for TV set. मैं इसे फिर से शिफ्ट कर लेता हूं और डिस्प्ले फंक्शन को ऊपर ले लेता हूं। Okay, do you have any doubts about this, please? Let us see the solution provided by you by the school. हम देखेंगे कुछ चेंजेस है क्या। ओके, छोटी छोटी चेंजेस पॉइंट आउट कर रहा हूं। पहले नेम स्ट्रिंग और फिर प्रोडक्ट आईडी डिफाइन किया INT। मैंने पहले INT प्रोडक्ट और फिर नेम, क्योंकि जो उस ऑर्डर में जैसे देखिए मैंने उस ऑर्डर में डिफाइन किए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा फंक्शन को नाम डिस्प्ले डेटा दिया गया है, डिस्प्ले स्मॉल लेटर में और डी डेटा का डी कैपिटल में। हमें ये डी कैपिटल में नहीं देगी, अगर स्मॉल में देना होता तो भी दे सकते थे। फंक्शन को नाम खाली डिस्प्ले देना है तो भी बरोबर है। ओके, सिस्टम आउटपुट प्रिंट करते समय प्रोडक्ट आउट आईडी के बाद इधर इक्वल टू दिया गया है, मैंने कोलन दिया है। यहां लिखा गया मैसेज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा था। इक्वल टू दिया, मैंने कोलन दिया था डेकोरेशन के लिए। ब्लैंक लाइंस छोड़े गए हैं यूं ही, विच आर नॉट नेसेसरी। प्रोडक्ट टीवी सेट बनाया, कूलर बनाया। ओके, टीवी सेट को प्रोडक्ट आईडी दिया 101, मैंने 1001 दिया था। नेम टीवी सेट मैंने सोनी दिया था। आई कुड हैव रिटन इट एज सोनी टीवी सेट। चलो वो कर देता हूं, ऐसे ही मैंने नाम में टीवी सेट ऐड कर दिया खाली। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द नेम। फिर डिस्प्ले करते समय टीवी सेट डॉट डिस्प्ले डेटा, फंक्शन का नाम डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले डेटा दिया है, दैट्स ओके। कूलर डॉट डिस्प्ले डेटा और फिर मेन फंक्शन खत्म, क्लास खत्म। तो छोटे मोटे डिफरेंसेस जो आपने देखे, फंक्शन का नाम एक, डिस्प्ले डेटा विद डी कैपिटल, डी स्मॉल में भी हो सकता था। ओके, यहाँ डिस्प्ले डेटा में जहां हम डिस्प्ले कर रहे हैं आउटपुट, ये इक्वल टू सिंबल यूज किया डेकोरेशन के लिए। आई हैव यूज्ड कोडिंग। डिक्लेरेशन में पहले नेम डिक्लेयर किया है, फिर प्रोडक्ट आईडी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। प्लीज रिप्लाई एनी क्वेरी। हैव यू अंडरस्टूड, यस or no? Or do you have any query? You can unmute if you have some query. No, sir, I understood. Mehak, what about you? So even I understood. Okay, we'll solve one more program. Just give me a moment.
Now in the second part of the session, we do some more programs that we were doing till Friday. Okay, that means without objects. Okay, let us have a look at some questions which are appearing in the handout given to you at the beginning. Let us complete this handout. Programs 4 थे, वो चारों हमने कर दिए. So in the afternoon session, do we have to submit anything like homework for Friday too, bro? Sorry, repeat please. Do we have any homework for the next session? See, I'll see, you know, in between, before meeting, after this lecture and before meeting, I will go through and I'll share with you if I have anything on WhatsApp. Okay? WhatsApp or email, I'll share it with you. Please have a look at this question. To create an object, keyword. Okay, object बनाना है keyword for class computer. क्लास का नाम है कंप्यूटर. तो कैसे बनाएंगे ये? कंप्यूटर क्लास का नाम, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम कीवर्ड जो हमें बनाना है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, न्यू, ओके, सॉरी मैं कीवर्ड कह रहा हूँ, कीबोर्ड इक्वल टू न्यू एंड देन द नेम ऑफ द क्लास अगेन विद अ पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट्स. कंप्यूटर इज द नेम ऑफ द क्लास एंड कीबोर्ड इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. To create an object crow from the class bird, class का नाम bird, object का नाम crow, equal to new and then again the class का नाम with brackets. To create an object Dell from class laptop, laptop is the name of the class, object name is Dell, equal to new laptop. Have you all understood this? अच्छा, अभी frankly ये जो mention 3 data members and 2 methods for the following classes. Class employee के, okay, इस class employee में 3 data members बनाने. तो हमने समझो 3 data members, हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें एम्प्लॉय आईडी था, नेम था, डिपार्टमेंट था. अच्छा, हमने मेथड एक ही बनाया था, वो था डिस्प्ले. ओके, यहाँ पर हमने 2 मेथड सजेस्ट किए हुए, एक कैलकुलेट सैलरी, ओके, जो एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट करेगा, और दूसरा डिस्प्ले डिटेल्स, जो उसे डिटेल्स डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय के. इसमें कैलकुलेट सैलरी में एस कैपिटल में दिया गया है, कैलकुलेट स्मॉल में लिखा है, डिस्प्ले डिटेल्स में डिस्प्ले और डी कैपिटल में लिखा है. दैट्स ओके. या आई वुड रिकमेंड फॉलो द नेमिंग स्टाइल यूज्ड बाय योर टीचर, बाय स्कूल टीचर. आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू फॉलो माय नेमिंग स्टाइल. ओके, एंड यू फॉलो दिस स्टाइल, द सेम स्टाइल. क्लास स्कूल, तो क्लास स्कूल में डेटा मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, स्टूडेंट डिटेल्स, स्कूल का टेलीफोन नंबर हो सकता है. Yes, Anika, you can leave. We are meeting next at 7 o'clock. If there's any homework, I'll send it to you through WhatsApp or email. Okay, sir. Thank you. And methods, calculate fees and attendance. क्लास कंप्यूटर, इसमें मेंबर्स है, कंप्यूटर का मॉडल नंबर, उसका रैम कितना है, उसका प्रोसेसर कौन सा है. एंड मेथड्स होंगे इसमें, कंप्यूटर क्लास में स्टार्ट एक फंक्शन, शट डाउन एक फंक्शन, लॉगिन और एक फंक्शन. अभी आप मुझसे पूछेंगे कि कंप्यूटर क्लास में एक और मेथड होता तो कौन सा होता? स्लीप. आप नॉर्मली कंप्यूटर को स्लीप मोड में भी डालते हैं.
ओके, डेटा मेंबर, कुछ और डेटा मेंबर्स होते तो हो सकता है कोई और डेटा मेंबर होता तो होता हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है। तो इट्स मैं जैसे कह रहा था, ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? As such, in this question, there is, I wouldn't say there's something to understand. It is just that these are members, these are methods. Okay, they've asked you for 3 members and 2 methods. So you remember these members and these method names and accordingly write them as answers. Just a moment, we'll see if we can do another program. Next 5 minutes, I'm doing one more program, Anika. New class. And I'm giving the name as area of triangle. I'm doing it in a different fashion. Okay. Double click. Control A to select the lines and delete them. Public class area of triangle, curly braces, double type. I'm making variables or data members. B for base, H for height. So let me name it as base, height, and area. Okay. Yeah, notice one thing. Please notice one thing. Today, when we are making data members within the class, we are not initializing them with zeros, please. Please notice. We have not been initializing them to zeros. Notice that and follow that. Next, we are defining a function, public void, and the name of the function is display area or display details. The name could have been display area also. Curly braces. I'm going to display length of triangle, sorry, base of triangle, equal to, instead of colon for decoration, I'm putting the equal to symbol, and I'm writing the name of the variable base. System.out.println height of triangle, height, area of triangle equal to area. Now you would wonder, there's one thing, yeah, one would wonder, base has no value till now, height has no value, area has no value till now, so how come you would print it? Okay. From main function, we are going to give values to base, height, and area. I repeat, from the main function.
So this is the display details function, and now comes the public static void main function. Okay, how do you create objects? Area of triangle is the name of my class, and my object name AOT1 equal to new area of triangle and brackets after that. Another object I'm making, area of triangle AOT2 and area of triangle. Third object I'm making AOT1 dot base. I'm giving the value 5. AOT1 dot height. I'm giving the value 10. Now notice one thing. Okay, notice one thing. My variables base, height, area are double, but the value I've written is 5 and 10. Okay, today I'm telling you this fact that double values, okay, double values can even take integer values. Variables which are double can even take integer values, but not vice versa. Integer will not take double values. Double variable, a variable double can take integer value, but integer variable will not take double value. And now we are calculating the area equal to, see the formula I'm writing, area of triangle equal to, or just one moment. I'm making a function, one more function, public void calculate area. Yes, I'm making one more function in this example, calculate area. Area equal to 0.5 into base into height. Okay, I'm not going to write any object name AOT1 over here. Okay, area equal to 0.5 into base into height. I've written AOT1 dot base equal to 5, AOT1 dot height equal to 10, and now I'm writing AOT1 dot calculate area. That means I am telling UJ that you execute the function calculate area for the object AOT1. AOT1 ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट एरिया करो तो कंप्यूटर कैलकुलेट एरिया के पास आएगा और 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट कैलकुलेट करेगा. अच्छा, बेस बेस किसका लेगा? वो AOT1 का बेस. हाइट किसका इस्तेमाल करेगा? AOT1 का हाइट. और एरिया कैलकुलेट करके देगा एरिया को. किसके एरिया को? AOT1 के एरिया को. क्यों AOT1 के? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल करने वाला कौन है? AOT1 है. तो ये फंक्शन जिन भी वेरिएबल्स के साथ काम करेगा, एरिया, बेस और हाइट, वो किसके होंगे? AOT1 के होंगे. ये बात समझिए आपको. AOT2 dot base equal to 5.5. AOT2 dot
height equal to 10.5, AOT dot calculate area function. ओके हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने अलग फंक्शन बनाया है. अब इसी तरह AOT3 डॉट बेस को वैल्यू देते हैं 20, AOT डॉट हाइट को वैल्यू दे रहे हैं 25.5, AOT डॉट 3 डॉट कैलकुलेट कर रहे एरिया एंड फाइनली अभी AOT1 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स. तो डिटेल्स प्रिंट होंगे AOT1 के बेस हाइट एरिया, AOT डॉट डिस्प्ले डिटेल्स तो प्रिंट होंगे AOT के, AOT3 डॉट डिस्प्ले डिटेल्स फंक्शन प्रिंट करेगा AOT3 ऑब्जेक्ट के. और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन खत्म हुआ, क्लास खत्म हुआ और प्रोग्राम खत्म हुआ. इधर एक छोटी सी गलती AOT3, यहाँ मैं गलती से 2 लिखा था इसीलिए एरर आ रहा था, बिकॉज AOT2 was already declared. ये देखिए, you can't again declare the same variable, same object. Okay, there's no other error in this program. So I've introduced one more function to calculate area. Compile करते हैं, no errors, close, right click on the class and execute the void function. Okay, we are getting the result, base, height and area of the first triangle, then the second and then the third. Have you understood this, please? I have done with this example. Mehak, have you understood this or you have any query? No, sir. I'll be sending these files to you immediately now through my mail. Go through them. Okay. If there's any homework, I'll share it with you in the next few minutes. Or okay, we are meeting next at 7 p.m. We are stopping over here today. Okay. Any query do you have?